फॉर यू बिकमिंग एन एथिकल हैकर, ये क्यों अचानक से? इसकी तो कोई मतलब अभी तक कोई ग्रोथ भी नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है, कुछ करेगा भी क्या, कुछ कमाएगा भी क्या? ऐसे काफ़ी सवाल सोसाइटी में पेरेंट्स के थ्रू भी हमें आते हैं। बट आपके ऊपर उस टाइम पे कुछ ऐसा मेंटल प्रेशर आया था फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली? बट ये हैकिंग सुन के एक तो एक्सप्लेन करना ही बहुत टफ हो जाता है। हाँ। फैमिली का यही था कंसर्न कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ। सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं है, ये फील्ड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगता नहीं था लोगों को लगेगा अरे इसको क्या ही आता है, तो खुद ही बच्चा ये हमें क्या सिखाएगा? इनिशियली अभी आज के टाइम पे तो काफ़ी केसेस है साइबर क्राइम के। हर एक पुलिस स्टेशन में कम से कम मुझे लगता है कि 100 अबो केसेस तो मंथ में आते होंगे। एम्स के साथ हुआ था। एम्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जेएनपीटी के साथ हुआ है, जो इतना बड़ा कोर्ट अथॉरिटी है, जिनके साथ ये रैंसमवेयर अटैक हुआ है। जैसे कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म है, वैसे ही फ्रॉड जीपीटी भी है। जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। अभी आप बहुत ही ईजिली कोई भी वर्चुअल नंबर लेना है या कोई भी आईपी को हाइड करना है, मास्क करना है, तो वो फ्रॉड जीपीटी के थ्रू बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो कमांड। Fear of failure, scared to take risks. But here is the truth. There is nothing called as fear of failure. It's not real. It is a story you tell yourself. Every successful CEO failed multiple times before winning. And here is how you can flip it too. Instead of, what if I fail? Ask, what if I learn? Second, the 10-second rule. Imagine the worst case scenario. Now, reframe it as an opportunity. Action over perfection. Your biggest failure is not trying. Yes, you heard me right. So go ahead and take the first action. Comment, I'm ready to release the fear of failure. And share it with someone who needed this today. Imagine this, you get a video message from your boss or your family member asking for an urgent financial help. And it looks like them exactly, sounds like them exactly, but it's not them. It is an AI generated deep fake. Yes, within minutes, your millions could be lost. This isn't a fiction, it's happening right now. And here is the data to prove. According to Europol, AI is now being used by criminal networks to amplify fraud, identity theft, and phishing attacks, with voice and face cloning being used to bypass even two-factor authentication. Yes, you heard me right. And there is a data to prove this. In 2023 alone, global losses to cybercrime hit $8 trillion. And experts predict it will rise to $8.5 trillion annually by 2025. A huge chunk of that is due to AI-enabled scam. In India, over 1.3 lakh cybercrime cases were registered in 2023, many involving fake job offers, digital arrest, and even obscene content. Haryana alone cracked down on 1,900 cybercriminals in just 3 months this year. So the big question is, are we ready for this next generation crime wave? How are law enforcement agencies responding? And more importantly, what can you do to protect yourself? So today on the show, we have someone who's been on the front lines of cyber investigation, Shubham Cybercop, a cybersecurity expert who worked with law enforcement to burst digital crime syndicates. So let's welcome him. Welcome Shubham, welcome to the talk show with Sneha Karwat. And here we will be talking about all about your journey. हम दर्शकों को चाहते हैं कि एक उस पेज टर्न करते जाए हर एक पड़ाव पर, आपके लाइफ के बारे में, आपके डिसीजन के बारे में. Why did you get at the age of 15 into ethical hacking, and today what you're doing and how are you helping Mumbai police to crack some real critical cases, right? एंड गोल हमारा ये है कि जब ये शो खत्म हो, ये कॉन्वर्सेशन हमारा खत्म हो, तो हमारे ऑडियंसेस को कुछ ऐसे एनलाइटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन मिले जिससे दे कैन बिल्ड देयर करियर. एंड इफ समबडी इज finding it difficult to find their way to a career or a place where they want to achieve, maybe even if they want to get into an ethical hacking, how is the mindset that you have been through and what is the mindset that you have carried to achieve that today? Yeah? Thank you, Sneha. Thank you for inviting me on this platform. So basically, I started my career. I was studying in my 12th class, and after there was one incident, like my Facebook account got hacked. After that incident,
I got to know about ethical hacking and cyber security field कि there is something like that कि कोई ऐसा टर्म होता है ethical hacking या cyber security field होता है जिसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो एक मोमेंट था जिसके बाद से मैं ये फील्ड में मैंने इस फील्ड के बारे में जाना और इसमें मैंने रिसर्च किया। उसके बाद मैंने रिसर्च करने के बाद मेरा जॉइंटली मैंने काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ काम करना स्टार्ट किया। सो जब ये मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था तब मुझे पता चला था कि हैकिंग हुई, फिशिंग के थ्रू मेरी फेसबुक अकाउंट हैक हुई थी। जब हैकिंग में क्या होता है? आपने क्या बोला? आप यू वर ऑफ एज ऑफ 13? I was in 12th class. 12th class. Yeah. 15, 16 years Yes. old. I was in 12th. So 12th क्लास में था मैं, टेक से भी था, मोबाइल वगैरह था मेरे पास उस टाइम पे, तो सोशल मीडिया और नॉर्मल टेक से काफ़ी मैं एक्टिव रहता था टेक चीज़ों से। तो हैक होने के बाद मैंने रिसर्च किया कि ये हैकिंग कैसे हुई, क्या रीज़न था। सो मुझे पता चला कि ये फिशिंग से हुई थी हैक, कि आप मुझे कोई फिशिंग लिंक आया था जो मैं ओपन करके मैंने मेरे क्रेडेंशियल शेयर कर दिए थे वहाँ पे, और उसके बाद मेरे फेसबुक अकाउंट हैक हो गए थे। फिर मैंने जाना कि ये कैसे हैकिंग होती है, इसकी स्टडीज़ भी होती है, तब मुझे पता चला कि एथिकल हैकिंग है। इसमें कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ईसी काउंसिल और सैंस करके, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा हाइप नहीं था इंडिया में कि हर एक जगह, जैसे कि अभी हम देखेंगे तो कोई भी जो टेक रिलेटेड या जो आईटी रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो वहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग कोर्स भी अब मिल जाएंगे, पर उस टाइम पे इतना इजी ये प्लेटफॉर्म था नहीं। शुभम, अगर मैं ये जानना चाहूँ, आप एट द एज ऑफ 15 आप 12th में थे, आप क्या पढ़ रहे थे तभी? मैं साइंस स्टूडेंट था। साइंस स्टूडेंट थे, एंड आपने कभी एम्बिशन किया था कि आप एक हैकर बनेंगे, एथिकल हैकर बनेंगे? जी नहीं। तब आपका क्या विजन था, आपको क्या बनना था? मुझे तो इनिशियली उस टाइम पे एनिमेशन में जाना था, और जबकि उस टाइम पे काफ़ी अट्रैक्टिव फील्ड था वो एनिमेशन, 2D 3D, तो मैंने एनिमेशन में डिप्लोमा भी किया आफ्टर 12th। बट ये जो जर्नी थी, उस जर्नी में मुझे कुछ वो मज़ा नहीं आया इस काम में, एनिमेशन में। बट जब मैंने जैसे कि मैं ये इंसिडेंट के बाद से मैं काफ़ी कुछ पेजेस फॉलोअप करता था रिलेटेड टू आईटी कोर्सेज, तो मुझे पता चला कि एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स का ही वेंचर था वेजिलेंट नेट सॉल्यूशन, तो मैंने वहाँ पे एनरोल किया, जो पवई में ही था आईआईटी बॉम्बे के कैंपस के इसमें। तो वहाँ पे मैंने एनरोल किया फॉर एथिकल हैकिंग कोर्स और साइबर सिक्योरिटी कोर्स। वहाँ से मेरे जो बेसिक स्टेप्स था कि बेसिक चीज़ें मैंने स्टडी की कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि मुझे भी तब लगता था कि ये हैकिंग है, मोबाइल हम किसी के भी इजीली हैक कर देंगे। सो वो यंग जनरेशन टाइप में ऐसी मेंटालिटी थी, पर एक्चुअली जब इस फील्ड में जाने के बाद पता चला कि ये सेफ कैसे करना है, वो मेन इस फील्ड का काम है, ना कि किसी का हैक करना है। दैट्स व्हाई ये एथिकल टर्म है। अगेन बिफोर यू बिकमिंग एन एथिकल हैकर, बिकॉज यूजली हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि दो सवाल, अरे ये तो साइंस पढ़ रहा था, अचानक से क्या करने लग गया। दूसरा, हैकिंग ये क्यों अचानक से, इसकी तो कोई अभी तक कोई ग्रोथ भी नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है, कुछ करेगा भी क्या, कुछ कमाएगा भी क्या। ऐसे काफ़ी सवाल सोसाइटी में पेरेंट्स के थ्रू भी हमें आते हैं। एंड एज अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 15-16 जहाँ हमें क्लैरिटी इतनी होती नहीं, बट हम सोचते हैं कि ओके वी नो व्हाट वी हैव टू बी, एंड सडनली शिफ्टिंग द होल गेयर, डूइंग समथिंग न्यू विच वॉज नॉट सो प्रिवलेंट इन द सोसाइटी बैक देन। अभी तो फिर भी एथिकल हैकर ये टर्म, साइबर कॉप्स काफ़ी आ चुके हैं, yet we are struggling to have something like this in our day-to-day education. We'll talk about it. But आपके ऊपर उस टाइम पे कुछ ऐसा mental pressure आया था from society, from family? Of course, because लोग अवेयर नहीं थे, इवन फैमिली को भी काफ़ी कन्विंस करना पड़ा कि ये फील्ड है इसमें, क्योंकि फैमिली ये देखती है कि आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगा XYZ स्टडी करने के बाद या XYZ कोर्स करने के बाद। तो मेरे फैमिली का यही था कंसर्न कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ, क्योंकि मेरे जो कजिन्स थे, मेरे जो ब्रदर्स थे, वो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में थे। सो वो उनका ये था कि मैं भी इसी में एनरोल करूं। बट
मेरा इंटरेस्ट काफ़ी टेक रिलेटेड था पहले से, इस वजह से मैंने कन्विंस किया और फिर मैंने एथिकल हैकिंग और फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, काफ़ी, जैसे कि सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं है, ये फील्ड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी करियर आपको आपको अलग अलग रूट्स मिलेंगे इसमें भी कि आप वो चूज़ कर सकते हो। सो आप जब कन्विंस कर रहे थे, वर यू अंडर द प्रेशर कि मैं करूँ ना करूँ, वर यू बीइंग कंफ्यूज, डाउटफुल कि मैं सही चूज़ कर रहा हूँ कि नहीं करियर, ऐसी चीज़ें होती थी आपके साथ, थॉट्स आते थे, तो आप कैसे हैंडल करते थे? ऑफ कोर्स होती थी, बिकॉज देखिए मैं तो उस टाइम पे एनिमेशन भी मैंने किया था, हाँ। क्योंकि मैंने उनको इस चीज़ के लिए भी कन्विंस किया था, पर उनको कहीं ना कहीं एनिमेशन का लगा था कि हाँ इसमें कुछ करियर हो सकता है, बट ये हैकिंग सुन के एक तो एक्सप्लेन करना ही बहुत टफ हो जाता है, हाँ। बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली से थे कि हमें उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली हैकिंग क्या होता है, बट एट लास्ट उन्होंने समझा मेरी बातों को, और जब देखा कि हाँ ये कुछ ग्रोथ हो रही है इस चीज़ में और कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कितना साल लगा आपको ये प्लेटफॉर्म और ग्रोथ मिलने में फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड? 6-7 ईयर्स, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे तो एज ए वॉलंटियर ही हम काम करते थे, इवन फॉर डिपार्टमेंट एज ए वॉलंटियर काम करना, उनको हेल्प करना, क्योंकि वो टाइम पे तो डिपार्टमेंट के पास भी साइबर क्राइम का सिर्फ, जैसे एग्जांपल मुंबई का हम ले ले तो सिर्फ बीकेसी में साइबर सेल था, और अभी हर एक जोन में है, हर एक पुलिस स्टेशन में स्पेशल साइबर क्राइम के डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, टीम है, बट बिकॉज केस इतने इंक्रीज हो गया कोविड के बाद से, जो डिजिटलाइज बढ़ गया है, सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, उसके बाद से केसेस भी बढ़ गए काफ़ी साइबर क्राइम के, सो अपॉर्चुनिटी भी फिर उसके बाद काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि इसको टैकल करने के लिए हमारे जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही रिक्वायर होते हैं। सो 15 ईयर्स ओल्ड जब आपने शुरू की थी, तब आपने कोई किसी तरीके की फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी? जो आपने बोला आप आईआईटी बॉम्बे से आपने कुछ एजुकेशन लिया, वाज दिस लाइक अ प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग टू बिकम एन एथिकल हैकर? सी सर्टिफिकेशन कोर्स था, बेसिक तो मैंने ऑनलाइन ही रिसर्च करके खुद से समझ लिया था कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी, उस टाइम पे भी ऑनलाइन कुछ ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया था कि ये हमें क्या करना है आगे करियर में, इसमें आगे क्या स्टेप लेना है, और जब वो कोर्स करने के बाद तो मेरा एक बेसिक स्टेप क्लियर हुआ, बिकॉज आपको एट लास्ट कोई भी कोर्स हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो आपको एक डीप लेवल पे नहीं सिखाता, वो आपको एक इनिशियली एक सर्टेन लेवल पे ही सिखाया जाता है, उसके बाद आपको ही आपके एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके उसको और आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे पर्पस के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी भी और पहले भी काफ़ी ये एथिकल हैकिंग टर्म सोच के लोगों को ये लगता है कि हाँ हम किसी की वेबसाइट हैक कर लेंगे, किसी को एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या, आपका मोटिव क्या है। तो मेरा मोटिव तो यही था कि हम कुछ अच्छा कॉज करें, हमारे नॉलेज का कुछ गवर्नमेंट को यूटिलाइज हो, इसलिए मैंने फिर डिपार्टमेंट के साथ मैं कनेक्ट हुआ, और उसके बाद। और आप कैसे कनेक्ट हुए वो 6-7 साल का जो वॉलंटियरिंग पीरियड था? सो एक इंस्टीट्यूट था विक्रोली में, अग्रवाल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे जब मेरा ये कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैं कुछ प्रोफेसर से कनेक्ट हुआ, उसके बाद उनका ऐसा था कि जो यहाँ के बीसीए और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कुछ सेमिनार करते हैं, और मे बी इंटरेस्ट होंगे, तो उनका लैब था, आईटी लैब था काफ़ी बड़ा, जहाँ पे हम वीकली ट्रेनिंग देते थे। तो सेमिनार करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने एनरोल किया इस कोर्स में, तो हम उसमें वीकली सैटरडे संडे का एक बैच रन करते थे, और फिर वो कुछ 3-4 मंथ्स हमने रन किया, उसके बाद हमने एक लोकल पुलिस स्टेशन के लिए सेमिनार रखा, विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन के लिए, और वहाँ के कुछ ऑफिसर्स आए, उन्होंने देखा, तो हमने उनको अवेयर किया कि इस तरीके के स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, जबकि मुंबई में काफ़ी कम केसेस था उस टाइम पे साइबर क्राइम के, नॉर्मल क्राइम ज़्यादा होता था, और जो भी केस होता था वो तो पुलिस स्टेशन में अप्रोच नहीं होता था, वो सीधा साइबर सेल में होता था। तो फिर भी वो जैसे कि टेक्स्ट से हम नॉर्मल क्राइम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल क्राइम होता है, जैसे हम कॉल पे जो स्कैम हुआ है या जो फिजिकल क्राइम होता है, वो सब ऑलमोस्ट 80%
टेक्निकल के थ्रू ही CDR हो गया, कॉल डेटा हो गया, उसको एनालाइज करने के बाद डम टावर डेटा हो गया, उसको एनालाइज करने के बाद ही डिटेक्ट होता है क्रिमिनल के बारे में। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट है जब आप सेल्फ लर्न थे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, एंड येट यू स्टार्टेड टू गो ऑन फ्लोर एंड रीच आउट टू पीपल, एडुकेट देम बेस्ड ऑन वॉट एवर आपने खुद से सीखा था, ना ही आपने कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं की थी, करेक्ट? सो उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगता नहीं था लोगों को लगेगा अरे इसको क्या ही आता है, तो खुद ही बच्चा, ये हमें क्या सिखाएगा? हाँ, ऐसा होता था, बट जब जैसे सेमिनार हम ले रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स थे वो तो मुझसे भी काफी बड़े थे, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फिर वो होता था, बट एक टाइम पे उनको समझ में आता था कि हाँ ये इसे नॉलेज है, तो वो कुछ स्टूडेंट्स उस मोमेंट जब तक उनको समझ में आया, उस मोमेंट तक वो होता था ना, अगर इन्होंने मुझे कुछ ऐसा कह दिया तो मैं कैसे जवाब दूंगा, अगर ये सवाल का जवाब मुझे नहीं आया तो व्हाट इफ दे गेट टू नो दैट आई डोंट नो एवरीथिंग, आई एम जस्ट फेकिंग। बहुत सारे ऐसे सेल्फ डाउट लोगों में आते हैं जब वो कुछ भी नया करने चाहते हैं। करेक्ट। सो डिड यू आल्सो फेस समथिंग लाइक दिस, स्पेशली इस फील्ड में जिसका इतना था ही नहीं अवेयरनेस? राइट, ऑफ कोर्स मुझे भी काफ़ी ऐसे फील होता था, क्योंकि अब नॉट नेसेसरी कि मुझे 100% हर एक चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि वो भी IT फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, मे बी कुछ नॉलेज उनको हो सकता है मुझसे ज़्यादा, पर मुझे ये था कि मेरा जो मोटिव है वो बहुत ही प्योर है, तो और मुझे कैसे भी करके अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूटिलाइज़ करना है लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, और अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्यों ना मैं उसका यूज़ करके अवेयर करूँ लोगों को। मतलब का इंटेंट और पर्पस काफ़ी क्लियर था। काफ़ी क्लियर था, दैट्स वाई, क्योंकि काफ़ी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे कि ये होता है कि नहीं, यहाँ पे आप पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप खुद ही स्टूडेंट हो, अपने पैसे डाल के ट्रैवल कर रहे हो, सब सीखने की कोशिश कर रहे हो, बट उस वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो स्टेप नहीं लिया होता, इनिशियली खुद के इनिशिएटिव से मैंने जो भी स्टेप लिया, तब जाके मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ कि हाँ पुलिस कैसे काम करती है, एक साइबर एक्सपर्ट को कैसे काम करना है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कैसे काम करती है, तब जाके मुझे अब एक कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे एक अच्छा खासा नॉलेज है जिस पे कि मैं कोई भी केसेस को टैकल कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। वही अगर आपने बहुत फॉर्मल एजुकेशन ली होती और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली होती शुरू में, और फिर आप फील्ड पे उतरे होते, तो आपको क्या लगता है कौन से वाले एक्सपीरियंस में आपके पास ज़्यादा नॉलेज आता है? ये वाले में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे जितना बिलीव होता है कि थियोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकल ये फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसका। और जब ग्राउंड लेवल से हम देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, फील्ड पे जाना, तो आप एक पुलिस का पूरा काम कैसे चलता है वो भी समझ जाते हो, और आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो कैसे इसमें इन्वॉल्व करना है वो भी आप समझ जाते हो। सो आपने एक तरीके से सारा प्रोसेस समझा, कनेक्शन किए, आपने लोगों को सिखाया, आप पुलिस पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे लोगों से कनेक्ट हुए, उनका प्रोसेस समझा, जबकि आप बोल रहे पुलिस में पहले ये केसेस रजिस्टर भी नहीं होते थे, बिकॉज ये डायरेक्टली साइबर क्राइम ऑफिसर्स के पास, साइबर सेल में ये वाले केसेस डायरेक्टली अप्रोच होते थे। तो आप अगर ये प्रोसेस से ना गुजर के अगर आपको डायरेक्टली साइबर सेल में बैठा दिया जाता, what do you think would have been the better experience for you, going through the struggle and the process and becoming what you are today, or you think going directly to the cyber cell, training, helping those police officers crack the cases, and would you have been here or you would have been in a better position or much lesser? मुझे तो जिस जर्नी से मैं अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ वो जर्नी ही बेस्ट लगी है, बिकॉज मैंने साइबर सेल के लिए भी उस टाइम पे हमने काफ़ी सेमिनार दिया है, ट्रेनिंग किया है, बट जितना रिक्वायरमेंट इन ऑफिसर को था, बिकॉज काफ़ी टाइम मुझे लगा, जैसे कि हमने फिर एक इनिशियली टाइम पे ऐसा लगा कि हम 3-4 लोगों का ग्रुप है, टीम है, बट आपको उस टाइम पे 93 पुलिस स्टेशन थे मुंबई में, आप फिजिकली किसको किसको सिखाओगे ना, जबकि आपके पास ना कहीं से फाइनेंस का उनके साइड से कोई सपोर्ट है, क्या करना चाहिए। तो हमने एक साइबर वर्ल्ड एकेडमी करके पोर्टल डेवलप किया, जिस पोर्टल के थ्रू हमने फ्री कोर्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, फॉर ऑफिसर्स, काफ़ी ऑनलाइन उसको प्रमोट किया हमने, और लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ जहाँ अप्रोच था वहाँ पे हमने उसके बैनर्स वगैरह लगाए। और वो इनिशिएटिव एक स्टेप था जहाँ पे कि
क्योंकि आपको एक लाइमलाइट मिलेगा तभी आप और लोगों तक पहुंच पाओगे उस चीज़ को, आपके बारे में लोगों को पता चलेगा पता तभी। चलेगा। बिल्कुल। तो घाटकोपर में हमने एक ऐसी एक जगह एक पुलिस स्टेशन में लगाया था, तो वहाँ से मुझे फिर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से फ़ोन आया था कि आप ये जो इनिशिएटिव कर रहे हो, मतलब उनके काफ़ी अच्छा लगा था। तो उनको सिर्फ साइबर वर्ल्ड के बारे में कवर करना था, पर जब उन्होंने समझा कि ये जर्नी कैसे क्या हुई, तो उन्होंने मेरे ऊपर वो स्टोरी कवर की। फिर कुछ मैगजीन्स के मुझे अप्रोच आए, फिर ऑनलाइन धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कनेक्टिविटी, कांटेक्ट टू कांटेक्ट, ऑफिसर्स टू ऑफिसर्स, पहले ग्राउंड लेवल पे करते थे, फिर अभी आईपीएस लेवल पे ऑफिसर्स हो गए हैं कनेक्ट्स में, फिर काफ़ी स्टेट वाइज बाहर दिल्ली, एमपी, काफ़ी जगह। So ये process, इस journey ने has made cyber Shubham Singh today, rather than being just a cyber cop बन जाते या cyber officer बन गए होते या one of the supportive person within the cyber cell होते, right? Nobody would have approached you, written a story about you, or today we wouldn't have maybe having this conversation with you, because it's all about the journey, right? And that वही journey है, वही process है which has shaped you to be what you are today. Correct. So do you believe that intent, purpose और journey और या process अगर इसे word दे दें is imperative in somebody's growth, success and fame? यस, बहुत इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप जितने सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको उसके रिजल्ट आने ही हैं। तो यही होता है कि आप अगर आपने 100% दिया है तो आपका आउटपुट आएगा, बट टाइम लगेगा। बट क्योंकि काफ़ी अभी भी काफ़ी यंग मेरे एज के कुछ लोग हैं जो कनेक्टेड हैं मुझसे इस फील्ड के, तो मैं जितना हो सकता है मैं उन्हें गाइड करता हूँ और मैं उन्हें अवेयर करता हूँ, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो इंडिया में उतना ज़्यादा इस करियर का ग्रोथ हुआ नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आप क्या काम कर सकते हो, आप किस तरीके से किसी प्राइवेट फर्म के लिए या किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए आप क्या एक्सपर्टीज अपना यूज़ कर सकते हो कि जो उनको बेनिफिशियल है। ये सब कुछ इस फील्ड का मेन पार्ट है। So you were like a superhero without a badge, or a police officer without a badge all the time. So now tell me, as a young cyber officer, would that be a right term to use for you? Cyber expert. Cyber expert. So as a young cyber expert, without a formal education, without a police badge, how was it to crack your first case? It was difficult, but जो जर्नी थी उसमें मैंने सीखा था, जो टीम थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी, तो हमने काफ़ी केसेस दे, जैसे कि बिक्रोली पार्क साइड से ही बेसिक जब जो केस था एक, और बाकी उसके बाद हमने काफ़ी आईटी रिलेटेड जो साइबर मैट्रिमोनियल स्कैम था एक, जो हमने जो कुर्ला विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन का केस था, और वहाँ पे हमने पूरी टीम हमने दिल्ली से कुछ आइवोरी कोस्टा कंट्री के So that was your first case? It was not my first case, but it was something like कि जो टेक्निकल और डिफिकल्ट केस था मेरे जर्नी का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल जर्नी का। क्या था केस, वापस बताएंगे? केस था मैट्रिमोनियल स्कैम। मैट्रिमोनियल स्कैम, ओके। सो मैट्रिमोनियल स्कैम में होता ये है कि जो मैट्रिमोनियल साइट्स और जो डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं उस पे साइबर क्रिमिनल्स हंट करते हैं टारगेट करने के कुछ ऐसे विक्टिम्स को कि जो बहुत इजीली टारगेट हो जाए, और उनको सोशल मीडिया पे भी वो लोग मोस्टली जो विडो वुमेन होती है, मोस्टली जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, उनसे वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी वो इम्पर्सनेट करके कि हाँ मैं यूएस में एक डॉक्टर हूँ या एक्सवाइजेड कंट्री में, फॉरेन कंट्री में कहीं मेरा ये प्रोफाइल है, और अपनी हाई प्रोफाइल दिखा के डे टू डे लाइफ के कन्वर्जेशन करते हैं। वो उनके पास पूरा डेटाबेस होता है जिसकी आइडेंटिटी वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं, और जो विक्टिम होता है वो वेरीफाई नहीं कर पाता है कि ये वो पर्सन है ही नहीं जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इवन फिर वो नंबर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल नंबर होता है व्हाट्सएप पे, और वो कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करके, अभी आजकल काफ़ी इजी है कि कोई भी आप कंट्री के नंबर यूज़ करके व्हाट्सएप रन कर सकते हो। तो ऐसे करके वो कम्युनिकेट करते हैं, और एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट जीत जाते हैं विक्टिम के। उसके बाद एक कुछ इनिशियली 6 मंथ 4 मंथ बाद इनका तो कम्युनिकेशन चलता है कॉल पे, और सामने वाला जो है वो फॉरेन कंट्री में, इसकी फ्लुएंट इंग्लिश है और काफ़ी कन्विंस हो जाता है विक्टिम इनके साथ।
और वो डेली अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मतलब ये एक बहुत स्क्रिप्टेड होता है ये प्रोसेस, ये जो स्कैम होता है। इसके बाद एक सर्टेन टाइम आता है जहाँ पे कि विक्टिम को कल्प्रिट अप्रोच करता है कि मैं आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहा हूँ, क्योंकि ये एक तो वर्चुअल रिलेशनशिप में आ चुके हैं, ये इनके फ्यूचर प्लान्स बन चुके हैं और विक्टिम को काफी होप्स हैं, उसने फ्यूचर देख लिया उस पर्सन के साथ। और उसके बाद सडनली उसे वो इवन फोटोज, हर एक चीज के एविडेंस होते हैं कि हाँ मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। इवन वो एक फेक कुरियर ट्रैकिंग वेबसाइट बनाते हैं जिसपे कि दे कैन विक्टिम कैन ट्रैक, वो देख रहा है कि हाँ ये गिफ्ट्स आ रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव है, मैकबुक है, कुछ रिंग्स है, कंप्लीट ट्रैप। फिर सडनली कस्टम से कॉल आता है विक्टिम को कि आपके जो आपके जो कुछ आपके नाम से XYZ नाम पर्सन ने सेंड किया है, उस पर यू हैव टू पे सम टैक्स अमाउंट, ठीक है, नहीं तो आपको नोटिस आएंगे। और वो एक सर्टेन मोमेंट में उस विक्टिम को डरा देते हैं। सो विक्टिम क्या करेगा, जिसने गिफ्ट भेजा है उसको कॉल करेगा कि ये क्या है, और फिर वो मोमेंट पे बताएगा कि आप पे कर दो, मैं आपको वापस पे बैक कर दूंगा, अभी करंटली आई एम स्टक इन समथिंग वर्क और समथिंग, कोई हॉस्पिटल में बिजी है। ये एक रूट एक प्रॉपर ऐसे मोमेंट क्रिएट करके वो कन्विंस कर लेता है। और विक्टिम जब पैसे सेंड कर देता है, जैसे कि हमारे केस, मैंने ऐसे 2 केस देखे जिसमें कि एक विक्टिम ने अराउंड 8 लाख रुपीस भेजा है, एक ने अराउंड 9.5 लाख रुपीस भेजा है। टैक्स एक सर्टेन अमाउंट आपने इनिशियली भेज दिया 2.5 लाख, उसके बाद वो और कुछ ना कुछ करके कि इसमें और ये चीजें इतनी एक्सपेंसिव चीजें हैं, ऐसे करके ट्रैप में आ जाते हैं बहुत इजीली। और हम जब देखते हैं ऐसे केसेस में कि इतने अमाउंट कैसे लोग पे कर देते हैं, मतलब काफी ज्यादा मैंने देखा 30 लाख 45 लाख के अराउंड लोगों ने पे किया फ्रॉस्टर्स को ऐसे। And so easily they get trapped. So easily, क्योंकि ये पूरा उन्हें समझ में नहीं आता कि ये स्कैम है, ये प्रोसेस स्कैम है। बाद में जब समझ में आता है कि जब ये कन्वर्जेशन गैप होता है इनका, तब समझ में आता है, क्योंकि वो एट लास्ट तक उसने होप दिया है कि हाँ ये जो अमाउंट है वो पे बैक हो जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए वैसे भी वीज़ा अप्रूवल किया हूँ, अभी तुम मेरे साथ आने ही वाले हैं, आप मेरे कंट्री में, हम अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। ये एक पूरा होप ये मेल और फीमेल दोनों के साथ होता है कि आपने देखा मेजरली फीमेल इसमें? मेजरली फीमेल के साथ, बट मेल के साथ भी हुआ है। और इसमें भी यही है कि आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उसका एज ज़्यादा है, या जो ऑलरेडी मैरिड है बट उसका एज काफ़ी ज़्यादा है, उसको फिर फंसा के। सो आप ऐसे केसेस कैसे क्रैक करते हैं? अब हमने हर एक जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं उनके, बैंकिंग जो अकाउंट यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स वो इनका जो मोडस होता है, ये जो फ्रॉस्टर्स का, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट साइड के गर्ल्स के साथ शादी करते हैं, और इनिशियली जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है लोकल इंडिया में, वो उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो जो उनके रूरल एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं, एकदम जो लेबर टाइप है, उनके बैंक अकाउंट्स पे ये पैसे आते हैं और उनको XYZ परसेंटेज मिलता है, बट वो अवेयर नहीं है कि ये कोई स्कैम हो रहा है या ये कोई फ्रॉड का पैसा है। फिर धीरे धीरे वो वर्चुअल नंबर यूज़ करते हैं, जैसे VoIP नंबर हो गया, और फिर उसको ट्रैक करना, जैसे कि नॉर्मल सिम कार्ड हमने देख लिया किसके एड्रेस पे है, उसको ट्रैक कर लिया, ये कहाँ पे एक्टिव है, बट इसमें ये नहीं होता। इसमें आपको ऑनलाइन ही सब ट्रैक करना है। मैट्रिमोनियल साइट्स पे जहाँ पे उन्होंने अकाउंट बनाया उससे IP लॉग्स लेना, उसके थ्रू ISP प्रोवाइडर को ट्रैक करना कि कौन सा ISP प्रोवाइडर था, सर्टन IP एड्रेस कौन सा असाइन था। फिर एक काफ़ी लेयर्स होते हैं इसमें। उस लेयर्स के बाद हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सर्टन लोकेशन से ये एक्टिविटी हो रही है, और फिर भी हमें तो उसे फेस नहीं पता कि इस पर्सन ये कौन है इसके पीछे, बट कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, जिसके थ्रू हम उसे ट्रैक कर लेते हैं। सो हर केस में कहीं ना कुछ लूप होल रह ही जाता है। हेंस इज देयर अ कॉमनैलिटी इन ऑल दीज लूप होल्स? नो, बट सी लूप होल्स भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्कैम हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है, क्योंकि अभी जो करंटली जो स्कैम्स हो रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, AI रिलेटेड स्कैम्स हो गए, ये बहुत ही इजी हो गया है साइबर क्रिमिनल्स के लिए। AI को यूज़ करके कोई भी डीप फेक यूज़ करना, या अभी वर्चुअल नंबर क्रिएट करना, मतलब
आप टेक से भी नहीं भी हो तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपने कमांड दिया, आपको एक स्क्रिप्ट आ जाएगा, आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है आपको फेक नंबर के लिए, कौन से ईमेल आईडी को ईमेल सर्वर को यूज़ करना है जिसके थ्रू कि ईजिली ट्रैक ना हो। तो ऐसे टेक्निकली अभी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं गवर्नमेंट के लिए। So, why was 15-year-old solving crimes that police can't? Do you think there was a gap in Indian education system then and now? सी बिकॉज कि एज ए प्रोफेशनल आई एम साइबर एक्सपर्ट और एज ए प्रोफेशन वो ऑफिसर है। सो ऑफिसर्स के ये होता है कि डेडिकेटेड कोई भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। इवन इन साइबर सेल देर आर सम लिमिटेशन कि हाँ ये डेडिकेटेड ऑफिसर को 2 साल बाद 5 साल बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होना ही है। सो एक डेडिकेटेड टीम नहीं है। डेडिकेटेड टीम होने से ये होता है कि आपको जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि अब उसको उस ऑफिसर को 10 काम है, पेपर वर्क भी करना है, फील्ड पे भी जाना है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी करना है। हालांकि टीम है बट हमारा जो सिस्टम है उसमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं। तो आप वो एक टास्क नहीं है कि आपको सिर्फ एक टास्क करना है और आप उसमें ही डेडिकेटेड फोकस करके काम कर रहे हो। एक टाइम पे मल्टीपल केसेस हैं। इनिशियली अभी आज के टाइम पे तो काफ़ी केसेस है साइबर क्राइम के। हर एक पुलिस स्टेशन में कम से कम मुझे लगता है कि 100 अबव केसेस तो मंथ में आते होंगे। Every police station. Every police station. And you're talking all over India, or you're talking just about Mumbai right now? See, I'm talking about all over India, but So more than 1,000 cases all over India. Every single police station must be receiving every single day. Single day maybe they will be receiving 15 to 20 cases. Wow. Oh my God, that's still a huge number. Yeah. 15 to 20 cases every single day across pan India, across each and every police station. इतना क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। बट गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे कि अभी पहले ऐसा होता था कि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, बैंक फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आप बैंक में जाके अप्रोच करोगे कि वो अमाउंट को होल्ड करना है, आपको वो रुकाना है। बट अब जब 1930 जो हेल्पलाइन है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है, उसके थ्रू आप जब 1930 पे आपने कंप्लेंट रेज किया, इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स जो भी अकाउंट में या आपके विक्टिम के जो भी पैसे गए हैं वो इमीडिएटली फ्रीज हो जाएंगे। So if somebody is calling on this number, let's assume मेरे साथ कोई fraud हो गई and I'm calling on that number, so that number is specific to the bank related frauds? Specific for financial fraud. Any kind of financial fraud, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट्स पे हुआ है, सोशल मीडिया पे हुआ है, ई-शॉपिंग स्कैम हुआ है या यूपीआई स्कैम हुआ है, कोई भी स्कैम हुआ हो तो आपको 1930 पे आप अप्रोच कर सकते हो इफ़ आपका फ्रॉडलेंट तरीके से कोई इलीगल बैंक ट्रांजैक्शन हो गया। So it's an auto or it's a conversational, like a human? कॉन्वर्सेशन। Okay. लाइक जब विक्टिम अप्रोच करेगा 1930 पे तो एक इनका हर एक ऑल ओवर पैन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 1930 है, पैन इंडिया इनका कॉल सेंटर लैब है साइबर ऑफिशियल्स का। तो वो आपको जो आपके ट्रांजेक्शन आईडी है, आपका फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका लोकल पुलिस स्टेशन, ज्यूरिस्डिक्शन कौन सा है वो, और बेसिक इन्फॉर्मेशन की ये क्या मोडस से ये स्कैम हुआ है, वो आपसे जानने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है, आपने जो ट्रांजैक्शन किया है, उस ट्रांजैक्शन आईडी के बेसिस पे इमीडिएटली उनके पास एक्सेस है वो जहाँ पे भी ये पैसे गए हैं। क्योंकि पहले होता था कि अमाउंट जाने के बाद साइबर फ्रॉडस्टर्स किसी एटीएम से कैश विड्रॉ कर लिए मास्क लगा के, बट अभी इतने अवेयरनेस हो गए हैं कि अब अलाउड नहीं होता कि आप हेलमेट लगा के या कोई मास्क लगा के किसी एटीएम में चले जाओ। तो अभी ये क्या करते हैं कि दूसरे अकाउंट्स में या किसी और पेमेंट गेटवे पे अमाउंट आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर वो किसी और अकाउंट पे भी जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, कि 5th, 6th, 10th, 15 तक ये अगर अमाउंट जा रहा है जहाँ तक, वो सब अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। और वहाँ पे अगर आपने एक गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि अगर आपके स्कैम हुआ, आपने वो 30 मिनट्स के अंदर आपने रिपोर्ट कर दिया, तो आपको चांस है कि वो अमाउंट आप रिट्रीव कर सकते हो। बिकॉज इसके प्रोसेस है, एक बार आपने ये रिपोर्ट किया, आपको SMS आएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हो,
या फिर cybercrime.gov.in पे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हो आपका कि ये अमाउंट फ्रीज हुआ है, होल्ड हुआ है। और जैसे ही ये होल्ड होगा तो आपको, जैसे किसी के 50,000 का स्कैम हुआ है तो उसने एक 4,000 होल्ड हो गया है, तो वो 4,000 का आपको मैसेज आ जाएगी 4,000 हैज़ बीन होल्डेड। और फिर आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आपके ऑफिसर से कांटेक्ट करके आगे इसमें एक कोर्ट को एक नोटिस जाता है और कोर्ट वो नोटिस देगा कंसर्न बैंक को पैसे रिलीज करने के लिए कि आप जो भी विक्टिम है उसको वो अमाउंट कैसे रिटर्न होंगे, उसका एक प्रोसेस होता है। तो जो ऑफिशियल है आपका लोकल पुलिस स्टेशन, वो ऑफिशियल आपको गाइड करेगा इस स्टेप के लिए। Got it. So is there other helpline numbers also for different category? जैसे आपने बोला financial fraud के लिए 1903 helpline 1930 sorry 1930 for financial fraud. So और भी ऐसे helpline numbers है for different category of frauds that happen in India? नहीं, फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड सिर्फ ये है। बट अगर कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो आप cybercrime.gov.in पे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ कैटेगराइज किया है कि क्राइम रिलेटेड टू वुमेन और क्राइम रिलेटेड टू चाइल्ड और क्राइम रिलेटेड टू सोशल मीडिया और समथिंग। तो यू कैन रिपोर्ट देयर इवन इफ़ यू फील कि ये मुझे कोई SMS आया है या मुझे कोई ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्कैम लग रहा है या कोई वेबसाइट लग रहा है, तो अभी उस पोर्टल पे उन्होंने ऑप्शन दिया सस्पेक्ट डेटा। सो एक वर्ल्ड एक कंट्री वाइड एक सस्पेक्ट डेटा वो डेवलप करेंगे और कितने लोगों ने उसको रिपोर्ट किया उस हिसाब से उसको टेक डाउन करेंगे। वो भी उसमें ऑप्शन है। Do you think, Shubham, that corporates or the startups are ignoring the cyber security while setting up the business? ये सोच के कि अभी इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टमेंट अपना फंडिंग हम अपने बिजनेस सेटअप में डाल रहे हैं, बट हैव यू कम अक्रॉस सच केसेस जहाँ पे अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया होता साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स या थिंग्स, यू प्लीज पुट सम मोर लाइट ऑन इट, they would have saved much more than what they have invested? Of course, because जो कॉर्पोरेट मोस्टली फेस करता है फाइनेंशियल फ्रॉड या उनका डेटा थेफ्ट हो गया, तो उनको बेसिकली होता है रैंसमवेयर एक अटैक होता है जिसमें कि अगर किसी, मोस्टली ये कॉर्पोरेट को टारगेट करते हैं, जो बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है, कोई कंपनी है, उनके लिए वो टारगेट करते हैं। तो रैंसमवेयर में ये होता है कि किसी टारगेट पर्सन के पीसी को या उसके सर्वर पे कोई मेल आएगा और वो मेल ओपन करने के बाद या वो लिंक ओपन करने के बाद फिर उसका पूरा डिवाइस जो है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, जो डिवाइस का डेटा है। एनक्रिप्ट हो गया मीन्स आपके पास प्रॉपर बैकअप सिस्टम नहीं है या आपने वो फायरवॉल सेटअप नहीं करके रखा है, जिस वजह से आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है या रैंसमवेयर अटैक हुआ है। इस तरीके से विक्टिम होते हैं मोस्टली कॉर्पोरेट जो है। और आपने ये केसेस देखे हैं? काफ़ी केसेस देखे हैं, काफ़ी। जैसे अभी एम्स के साथ हुआ था, एम्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, JNPT के साथ हुआ है जो इतना बड़ा पोर्ट अथॉरिटी है, और ये तो बहुत बड़े नाम हो गए। बट ऐसे मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कि जिसमें छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट लेवल के एजेंसीज हैं जिनके साथ ये रैंसमवेयर अटैक हुआ है। फिर ये होता है कि यू हैव टू पे रैंसम, देन ओनली दे विल गिव डिक्रिप्शन की। और आपका अगर डेटा ही सिक्योर नहीं है, आपके क्लाइंट्स के डेटा सिक्योर नहीं है, तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे? क्योंकि वो जो डेटाबेस है वही पूरे एनक्रिप्ट हो गए, और वो डिक्रिप्ट के लिए जो ये की देंगे तभी होगा। सो यू हैव टू पे थ्रू बिटकॉइन, थ्रू क्रिप्टो करेंसी, then only they will give decrypt key. Before we move to cryptocurrency, I mean, such big organization like AIMS, JNPT, they also go through cyber. I mean, of course they go through. अब मैंने भी पढ़ा है, but how come they can invest in their cyber security things, right? The tools that, I mean, please do mention about the tools also. फिर वो कहाँ मिस कर जाते हैं? See, there are loopholes, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। जैसे कि इवन गवर्नमेंट जो होता है, जैसे गवर्नमेंट के सब सर्वर्स NIC पे होस्टेड है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पे, तो जो प्राइवेट इवन एम्स हो गए, जितने बड़े गवर्नमेंट रिलेटेड हैं, JNPT हो गए, वो भी हो गए, IRCTC हो गए हमारे, काफ़ी IRCTC को भी हैक हुआ। ये लूपहोल्स है, ये हो सकता है क्योंकि जो डेवलप कर रहा है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, जो टेक्निकल वेब डेवलपर है या एक्सपर्ट है, कोडिंग में एक्सपर्ट है। तो जो कोडिंग से कुछ लूपहोल्स हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको जो साइबर जो हैकर्स होते हैं वो फाइंड करते हैं और उसके थ्रू हैक करते हैं, जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे हम एथिकल हैकिंग की बात कर रहे थे,
तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर ये भी एक फील्ड है रिलेटेड टू हैकिंग, रिलेटेड जैसे साइबर फॉरेंसिक within the cyber इन आईटी, expertise. लाइक इन आईटी सिक्योरिटी। Okay. ठीक है, सो अभी फिलहाल क्या होता है ना, जो कंपनीज हैं उनको जैसे अभी एनुअली हर एक गवर्नमेंट बॉडी को अपना एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आप सिक्योर, आपका जो सिक्योरिटी, जैसे कि आपके जितने प्लेटफॉर्म्स है, जितने एप्लीकेशंस है, उसकी एक वनरेबिलिटी टेस्टिंग होगी कि इसमें एक लूप होल्स हैं या नहीं है। लूप होल्स हैं तो उसको कैसे पैच करना है, कैसे फिक्स करना है। जैसे कि अभी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, मेटा हो गए, इवन पेटीएम हो गए, और काफ़ी बड़े कंपनीज हैं जो बग बाउंटी प्रोग्राम रन करते हैं। तो बग बाउंटी प्रोग्राम में होता ये है कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं तो उनको फाइंड आउट करना है लूप होल्स इनके एप्लीकेशंस में। इफ दे फाइंड आउट तो उनको सम XYZ एक बग बाउंटी मिलेगा। और काफ़ी लोगों को जॉब्स भी मिले हैं, गूगल में मिले हैं, मेटा में मिले हैं। तो जो इस फील्ड में है इनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। So tell me, if I am tomorrow setting up a company to keep my system cyber safe, if that's the right term again, what things I need to do while setting up my company? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी आपके वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उसके डे टू डे बैकअप रखना है। और बैकअप ऐसे क्लाउड स्टोरेज पे रखना है जहाँ पे कि वो सेफ हो। सी मार्केट में काफ़ी अलग अलग कंपनीज हैं जिसके हम यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन के हैं और गोडैडी है, बिग रॉक है, काफ़ी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं। बट आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, आपके जो आईपी सिक्योरिटी हो गए, आपका डेटा सिक्योरिटी हो गया, जो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, आपकी वेबसाइट्स के आप टेस्टिंग कराइए, आप जो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो वो कितना रेप्यूटेड है और वहाँ पे कोई लूप होल्स है या नहीं है। तो काफ़ी लेयर्स हैं इस चीज़ में, हमें ये सिक्योरिटी। तो ऐसे काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कॉरपोरेट्स को, जो जैसे कि विप्रो हो गई, और जो बड़े जैसे हमारी गवर्नमेंट बॉडी को भी टेक महिंद्रा होगी, विप्रो होगी, काफ़ी कंपनीज CSR के थ्रू, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके थ्रू फंडिंग करती है। उनके लैब सेटअप में उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो वहाँ पे फिजिकली सपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट के लोगों को। तो ये एक CSR का प्रोसेस हो गया। रिलायंस हो गया, रिलायंस भी करता है। तो ये तो काफ़ी बड़े कंपनीज हो गए। बट जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो भी ऐसे प्राइवेट बहुत सारे कंपनीज हैं IT सिक्योरिटी के जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। So you think if I'm starting a company, are you telling me that I should reach out to IT security companies to help me set the process from very beginning? राइट, और समझो if I can't afford, let's assume I can't afford and I still want to, because मुझे लगता है मेरा विजन काफ़ी अच्छा है, मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, फलाना ढिमकाना, I'll be able to set up a business and get seed funding also, things like that, right? Lot of process that I believe in, I have clear picture, but right now I don't have budget. So as a basic common man trying to set up a business, क्या ध्यान देना चाहिए हमें? I've also read that 2-factor authentication is also not safe these days. So keeping everything in mind, please tell me, if I have to set up a company tomorrow, what should I be doing? With no budget probably. See, you can approach independent expert or penetration tester Okay. or cyber security expert. You can take his consultant कि how you can secure your platform or your website. और अब जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि हम एग्जांपल GoDaddy ले लें या बिग रॉक ले लें, तो वो उनका इनबिल्ट ही सिक्योरिटी अब प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज जो जितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं उस हिसाब से, जैसे हुईज प्रोटेक्शन हो गया, जो आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो अपने वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, तो आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं होगी, उसे हुईज प्रोटेक्शन हो गया। और काफ़ी आपके जो पासवर्ड्स हैं 2 लेयर, जैसे 2-factor ऑथेंटिकेशंस हो गए, तो उसमें भी आप जो नंबर्स रख रहे हो, जो ईमेल आईडीज रख रहे हो, कॉमन पासवर्ड्स नहीं रखना है आपको। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम कंपनी, तो जैसे कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा है काफ़ी, क्योंकि ये वन टाइम इन्होंने डेवलप कर दिया, बाद में ईयर टू ईयर रिन्यूअल होगा, बट जो पासवर्ड आपने इनिशियली आज से 5 साल पहले रखा है वही पासवर्ड अभी तक है, और फिर वो बहुत बेसिक सा या कॉमन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ नहीं करते। मैं ये स्टेटमेंट कई बार मुझे बहुत पहले आता था नोटिफिकेशन में, योर पासवर्ड हैज़ फाउंड इन डेटा लीक। सो इसका क्या मतलब हुआ?
सी देर आर लिस्ट ऑफ पासवर्ड, जैसे कि जो लोग जोमेटो यूज़ कर रहे हैं, स्विगी यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कुछ कॉमन पासवर्ड रखा है। अब रैंडमली हम इतना टफ पासवर्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें बस वो सर्विस चाहिए, हमने फास्टली XYZ हमारा नाम डाल दिया, हमारे पेट का नाम डाल दिया, जो कॉमन बहुत ईजिली गेस किया जा सकता है। तो एक डिक्शनरी अटैक होता है, जिसका एक पूरा डिक्शनरी, एक वर्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक न्यूमेरिकल होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, एक पूरा डिक्शनरी होता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के थ्रू उस लॉगिन पेज पे सबमिट किया जाता है। दैट्स वाई ये कैप्चा यूज़ करते हैं, आर यू ह्यूमन वेरीफाई करते हैं। अभी आप बहुत सारे पोर्टल है जहाँ पे यू हैव टू मैनुअली, आपको पजल है, वो पजल वेरीफाई करना है, देन ही वो होगा। बिकॉज जो ऑटो अटैक्स होते हैं वो डिक्शनरी अटैक के थ्रू, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं। दैट्स वाई अब ये लेयर, ये प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेप में हम जो भी, जैसे वेब सिक्योरिटी के लिए अलग है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए अलग है, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें याद रखनी है कि हम जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो अपडेटेड नंबर रखे, अपडेटेड हमारा रिकवरी ईमेल रखे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो एनेबल ही रखना है हमें। प्लस इसमें अब ऑप्शन ये भी आता है कि लोकेशन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आपने इस लोकेशन के इस वाईफाई में आपने वो अकाउंट क्रिएट किया था, अगर आप किसी और लोकेशन और किसी और वाईफाई में वो ट्राई कर रहे हो पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन करने की, तो वो वहाँ पे नहीं होगा, वो सिर्फ सर्टन एक लोकेशन पे ही होगा। तो कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आपको यूज कर सकते हो आप डबल लेयर सिक्योरिटी के लिए। So you're saying if as a startup or in general for any individual should look at, एक तो अपना डेटा बैकअप रखे, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एक्टिवेटेड रखे, उसमें भी अगर लोकेशन 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर सकता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी डन, एंड ऑल्सो बैकअप ऑफ एन email ID and a password. Yes. That's still a basic checklist for to keep your data and your profile safe. For everyone. For everyone. Right. Thank you. After listening to you, what I can say is now it's not about human war, which we are already seeing now. It's more like a AI war. So it's Dawood Ibrahim, who is actually a coder, who can use generative AI to actually create a war. What do you think about it? Am I right totally, or there's something else still going to happen? And are we as a country, as a nation, ready to take this new wave of? See, government is taking initiative AI का यूटिलाइज करके, कैसे काफ़ी बॉट्स हैं जो जैसे कि पहले होता था कि चैट सपोर्ट, इवन गवर्नमेंट्स के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, जहाँ पे AI यूज़ करके क्विकली आप रेस्पॉन्ड किया जाए, जो भी पब्लिक हैं या जो भी यूज़र्स हैं उनका, वहाँ पे तो हो ही रहा है। बट जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जैसे कि ChatGPT है, ChatGPT प्लेटफॉर्म है, वैसे ही फ्रॉड GPT भी है। फ्रॉड GPT का यूटिलाइज, जैसे डार्क वेब है, नॉर्मल वेब है, वैसे फ्रॉड GPT है। फ्रॉड GPT इज समथिंग लाइक कि वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं बहुत ही ईजिली। फिशिंग पेज, जैसे पहले फिशिंग पेज बनाना था तो आपको वेब होस्ट करना है, डोमेन चूज करना है, अभी आप बहुत ही ईजिली कोई भी वर्चुअल नंबर लेना है या कोई भी IP को हाइड करना है, मास्क करना है, तो वो फ्रॉड GPT के थ्रू बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो कमांड देके, कि हाँ किसी को मैट्रिमोनियल स्कैम करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या स्क्रिप्ट, कैसे कन्वर्जेशन करना है, इवन वो स्क्रिप्ट भी वो रेडी करके देगा। किसी को इम्पर्सनेट करना है किसी आइडेंटिटी को, तो जैसे कि डीप फेक, डीप न्यूड, ये किसी भी फ़ोटो को आप अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऐसे करके भी काफ़ी लोग फेक पिक्चर्स बना के, अपनी एक फेक आइडेंटिटी बना के लोगों में नॉर्मल सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बना के कम्युनिकेशन करना, फिर बाद में स्कैम करना, ऐसी भी काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी गई है। So fraud GPT is a term that you're using, or it really exists? Yeah. फ्रॉड GPT Yeah. जो ये सारी चीजें लिटरली करता है, कर सकता है। इट इज़ अ बॉट। सी, ये सब जनरेटिव है, ये जनरेट किया गया है। AI क्या है, AI को हम कमांड दे रहे हैं, वो हमें आउटपुट दे रहा है। ChatGPT है, सो ChatGPT इज समथिंग कि हाँ आप अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करना है, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस कि आप कुछ इलीगल आप उस पर सर्च करोगे तो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा। बट कुछ ऐसे AI बॉट्स हैं जहाँ पे कि आप
बहुत ही ईजिली फ्रॉडलेंट चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। How can a normal person know about it if it's happening with them? See, from web, if not like as a victim, Yeah. see, they have to keep them up to date, aware from such thing। जैसे कि हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ अवेयर करने के लोगों को, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, कुछ भी स्कैम्स है अपने सोशल मीडिया पे वो अपडेट करते हैं। तो एआई के बारे में तो सबको पता है कि एआई है, एआई क्या करता है, एआई का अच्छा यूटिलाइज कैसे हो रहा है, बट एआई के थ्रू जो स्कैमस्टर फ्रॉड कर रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है किसी भी एप्लीकेशंस पे, किसी भी वेबसाइट्स पे, और किसी भी ऐसे सर्टन लिंक्स पे कि जो हम ओपन कर देते हैं, हम Right. डाउनलोड कर लेते हैं। Right. So tell me, with so much of cybercrime happening in India and globally, but if we talk about India, has a law been ready or been worked upon to handle this kind of AI cybercrimes? See, especially for AI, there is no any specific law for AI. There is IT Act, but AI के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉलिसी या स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है फिलहाल अभी तक। बट जिस तरीके से AI का ग्रोथ हो रहा है कि ऑफ कोर्स, और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कुछ चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि आगे जाके स्पेसिफिक AI रिलेटेड, AI के थ्रू जो स्कैम्स हो रहे हैं, AI का जो रोल है उसमें कुछ ना कुछ लॉ बिल्कुल ज़रूरत है, आएगा। बिकॉज आज टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट AI. दिस इज़ द टाइम हम सब सिर्फ AI की बात कर रहे हैं। ChatGPT तो इतना कॉमनली यूज्ड एक AI जनरेटिव ऐप है या प्लेटफॉर्म है। इस तरह के काफ़ी कॉमन और प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं which we as a user are also using for creating our videos, our content, writing emails, messaging people, so many more things. And I think, for sure, I think that India needs, and in fact globally we need a law for AI based cyber crimes, and we need to act fast, because today nothing is happening without AI. We are working on agriculture, we're working on pharmaceutical industry through AI, we're working on health industry to grow, or our doctors can be replaced by AI, because the way AI is producing results much faster than the researches that an individual could do. So is there a conversation also happening around it? Let's say, like you said, there's nothing now, but is there even a conversation for the near future that's happening? like about law or Yes, about law that needs to be taken into consideration. या एज पर माय रिसर्च की गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है, कुछ लॉ एम्बेंड करने की तैयारी में है, क्योंकि एआई की पॉलिसी बहुत ही नेसेसरी है इवन गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट भी काफ़ी यूटिलाइज कर रही है एआई बॉट्स को अपने इनिशिएटिव में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में। पर जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको कैसे स्पेसिफिक ओनली फॉर एआई कोई आईटी रिलेटेड लॉ तो आनी चाहिए, बिकॉज अब वॉइस क्लोनिंग स्कैम, Right. आगे वीडियो क्लोनिंग स्कैम, Right. काफ़ी इसके लेवल बढ़ने वाले हैं। डीप न्यूड इज़ वेरी इजी की पोर्टल है, आपने किसी का भी एक सर्टन इमेज आपने अपलोड Correct. किया, वो इतनी फास्ट और इतनी प्रॉपर एक्यूरेसी में वो फोटो का आउटपुट देता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये फेक है। इवन फेक जो इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी रूमर्स फैलते हैं, बहुत ही ईजली एआई के थ्रू वीडियोस जनरेट करना, जिसके थ्रू दंगे होना, और ऐसे रूरल एरियाज में काफ़ी इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि यहाँ पे ऐसे कुछ वीडियो आ गए, किसी एक्सवाइजेड पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया या किसी कम्युनिटी ने कुछ बोला है, उस बारे में कोई न्यूज़ स्प्रेड हो गया। क्योंकि हमने काफ़ी अभी एआई रिलेटेड ट्रेनिंग दी थी यूपी में एक एक्सवाइजेड डिस्ट्रिक्ट में। सो ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर देते हैं चीज़ों को देख के। कोई एक वीडियो सर्कुलेट हो गया, बट उसमें वो पर्सन ने कुछ ऐसे कम्युनिटी को लेके, किसी कास्टिज्म को लेके कुछ बोल दिया, और उस वजह से वायलेंस हो गया वहाँ पे। ये सिर्फ एक वीडियो की वजह से उस एरिया में दंगे हो जाते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी को इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। तो ये इस चीज़ पे कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि इस पे अभी तक कंट्रोल नहीं है कि इसको ऑटो डिटेक्ट कैसे किया जाए कि ये एआई है, इसको वेरीफाई। जब तक जैसे हमें नॉलेज है कि इसको वेरीफाई कैसे करना है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है,
बट जो नॉर्मल यूजर्स हैं जिनको पता नहीं, जिनको सिर्फ वीडियो आता है, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फेक न्यूज़ ऐसे ही स्प्रेड होता है। Right. आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो इस चीज़ पे काम होना चाहिए। How many cases have you solved? Above 100, About 100. And Yeah. how many have you worked upon? 150 200 केसेस तो काफ़ी, जब से इनिशियली मुझे अभी 12-13 ईयर्स हो गए होंगे ऑलमोस्ट ये फील्ड में, तो काफ़ी केसेस देखे हैं साइबर रिलेटेड, नॉन टेक्निकल, पर कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं सब केसेस में। सोशल मीडिया पे स्कैम्स, मुझे काफ़ी डीएम्स आते हैं, ये हुआ Right. वो हुआ, किसी के फोटोज लीक हो गए हैं, किसी को, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा होता है ना कि स्पेशली अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि माइनर बच्चे होते हैं, या ये जो माइनर भी नहीं है, जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते कि हाँ उनका कोई रिलेशन था और फिर उसका जो पास्ट रिलेशन वाला पर्सन है वो उसे रिवेंज कर रहा है, रिवेंज पोर्नोग्राफी जिसे हम कहते हैं। Actually, there's a अब term called revenge पोर्नोग्राफी। सो हाउ टू टैकल, क्योंकि वो विक्टिम ना पुलिस स्टेशन अप्रोच कर सकती है, ना फैमिली में जा सकती है। अब मिस्टेक तो हो गया है उससे, अब इसको कैसे करना है? क्योंकि उसके साथ तो एक्सटॉर्शन हो रहा है कि या तो तू मेरे साथ आ, वापस से मिल, या मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, मुझे ऐसे फोटोज भेज। ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ पे कि विक्टिम हेल्पलेस है, या तो वो अपने फैमिली से रिवील कर दे, पर अब इतनी ज़्यादा ओपन मेंटालिटी भी नहीं है लोगों को, और बहुत डिपार्टमेंट पुलिस में भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते आप कि हाँ, तो वो लोग डरते हैं, विक्टिम डरते हैं कि हाँ हमें अप्रोच कैसे करना है, क्या हमारा फ़ोटो कहीं ऑनलाइन चले जाए तो क्या होगा। बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं जिसमें ये। तो ऐसे स्टेप के लिए जैसे कि मेटा ने खुद का एक टूल डेवलप किया है, टेक इट डाउन। सो अगर किसी माइनर का या किसी मेजर जिसका 18+ भी एज है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गए, जो फेसबुक मेटा का प्लेटफॉर्म है, और मेटा ने कुछ पोर्नोग्राफी साइट्स के साथ टाई अप किया है, पॉर्नहब के साथ किया है। तो अगर आप टेक इट डाउन टूल पे वो सर्टन फोटो, वो सर्टन वीडियो अपलोड कर रहे हो, वहाँ पे आप जब वेबसाइट पे जाएंगे उसके बाद वो आपको वो सिमिलर वीडियो जो लीक हुआ है वो आपको अपलोड करने के लिए कहेंगे। अपलोड करने के बाद वो आइडेंटिफाई करता है कि ये किस प्लेटफॉर्म पे है ऑलरेडी सिमिलर। जैसे हम रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, रिवर्स सर्च करते हैं, तो सिमिलर फोटो कहाँ कहाँ अपलोडेड है, फेस आईडी सर्च करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में कि एक बाइकर्स को किसी ने मारा है, तो वो वीडियो उनके पास था, तो उन्होंने सिर्फ वो वीडियो से वो फोटो सर्च किया और फिर आइडेंटिफाई किया कि ये सोशल मीडिया यूज़र, इस पर्सन थे उस चीज़ में इन्वॉल्व। तो वो इस ऐसे एआई का जैसे हम अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं, कुछ अच्छे टूल्स का हम अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं, टेक इट डाउन जैसे हो गया, तो वहाँ पे आपको विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स जो जिस प्लेटफॉर्म पे उनका टाई अप है वहाँ से वो वीडियो वो सर्टन रिमूव हो सकता है। Can you help us understand the list of platforms, just like you said, take it down, जहाँ पे as a victim can take a support to understand कि क्या as an because I'm sure every category is a different kind of a crime. लेकिन one of the case for financial fraud you mentioned that 1930 for places where if your photo has been used wrongly. So Meta has something called as Take It Down. So can you give us more information and light around it so that we can share this with our audiences also? Yeah. जैसे like Take It Down, there is one portal stopnci.org. I will share URL so you can mention Thank you very properly. much. So उस प्लेटफॉर्म पे आपका एक केस जनरेट होगा जहाँ पे कि किसी के सिमिलर किसी का फोटो या किसी का कुछ लीक हुआ है, इवन आपका अगर कोई फोटो किसी पोर्नोग्राफी साइट्स पे जा रहा है, सो उनको आप DMCA नोटिस या उनका आप जब वेबसाइट्स देखोगे तो यू कैन फाइंड आउट सपोर्ट ईमेल, वहाँ आप उनको मेल कर सकते हो, वहाँ अप्रोच कर सकते हो कि यू हैव टू टेक दिस डाउन बिकॉज इट्स माय फोटो या मेरा पर्सनल फोटो है, इस पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये नोटिस जाने के बाद वो, या आप किसी लॉयर से कांटेक्ट करके लॉयर के थ्रू उस पोर्टल को नोटिस भिजवा सकते हो। तो वो रिमूवल होगा, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का,
काफ़ी लोगों के फ़ोटोज़ लीक होते हैं और लीक होने के बाद वो एक सर्टेन पोर्नोग्राफी साइट्स पे जाते हैं और पोर्नोग्राफी साइट्स पे जाने के बाद बेसिकली जो यूज़र ने अपलोड किया है उसको तो एक अर्निंग मिल रहा है क्योंकि ये एड्स के थ्रू साइट्स रन कर रहा है और उनको अर्निंग मिल रहा है। जो यूज़र ने जितने कंटेंट उसके व्यूज़ हुए उस हिसाब से वो अर्निंग जनरेट कर रहा है। बट उसको जब नोटिस जाएगा लीगल तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर होता है और वो फिर टेक डाउन करते हैं। हम उसके होस्ट को फाइंड कर सकते हैं कि ये कहाँ होस्टेड है, उसके होस्ट को नोटिस जाएगा कि ये आपके सर्टन वेबसाइट है जो आपके सर्वर पर होस्टेड है। इससे रिलेटेड आप अपने जो भी वेबसाइट ओनर है उसको आप मेल करो या उससे कांटेक्ट करके रिमूवल कराओ इस पेज का। ऐसे करके काफ़ी हमने वीडियोस और काफ़ी ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट्स रिमूव करवाए हैं। And then we were talking about this whole thing ki which is the most prevalent fraud that you have seen so far out of the many cases that you have come across is the financial fraud in various formats. So can you just say कि अभी the recent कौन सा financial fraud चल रहा है बहुत ज़्यादा? रिसेंट में इन्वेस्टमेंट स्कैम चल रहे हैं जो बेसिकली व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू होते हैं, जिसमें कि आपको सडनली किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या तो सडनली आपको किसी पर्सन का मैसेज आएगा कि यू हैव सम टास्क, यू कैन ईजिली अर्न मनी फ्रॉम होम। सो आपको कुछ यूट्यूब लिंक्स दिए जाएंगे जिसको आपको लाइक और शेयर करने या कमेंट करने। आफ्टर दैट आपको वो कुछ अमाउंट जीपे करेंगे लाइक 400 500 समथिंग। उसके बाद वो आपको अप्रोच करेंगे कि यू कैन अर्न अमाउंट और आप कर सकते हो, हमारे पास ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं। सो वो आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, जिस ग्रुप में ऐड करने के बाद विक्टिम मोस्टली मॉनिटर करता है चीज़ों को कि हाँ 1 महीने हो गए 15 दिन हो गए, देखता है वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को। फिर ये देख के और वो काफ़ी रेप्यूटेड नाम यूज़ करते हैं, आदित्य बिरला का इन्वेस्टमेंट या किसी रेप्यूटेड कंपनी का इम्पर्सनेट करके उसके लोगोस वगैरह वैसे ग्रुप फॉर्म करते हैं और फिर वो एक लिंक देते हैं कि आप सैंपल आप ट्राई कर सकते हो ये इंस्टाग्राम पे भी बहुत होने लग गया अभी। इंस्टाग्राम पे तो कैसे एक मार्केट प्लेस बना दिया है लोगों ने कि स्टॉक ट्रेडिंग के ज्ञान देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप इस ट्रेडिंग पे इतने लगाओ तो सही है, ऐसे करके। तो काफ़ी ऐसे फेक और फ्रॉडलेंट है जो सर्टन अमाउंट देंगे 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ छोटे छोटे अमाउंट लेके, फिर आपको ज़्यादा लालच देंगे, फिर आपको एक लॉगिन एक्सेस देंगे जो उनका ही डेवलप किया गया प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि यू कैन सी कि आपने जो अमाउंट इन्हें दिया है वो अमाउंट दिख रहा है उनके अकाउंट में बैलेंस में और वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हाँ हमने आज इस स्टॉक में पैसे लगाए, वो आपको इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा और आप रिचार्ज कर सकते हो अमाउंट और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको तो सडनली आपको फिर एक ऑफर देंगे ये कि आपने अगर इस टाइम पे इतने अमाउंट किए तो आपको, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी देखे हैं कि जिनको नीड है, किसी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, किसी को बहुत इमरजेंसी है कि उसको सच में रिक्वायरमेंट है ज़्यादा पैसे का, तो उसके बाद सर्टन अमाउंट है वो डाल देता है कि सर मैंने तो डाल दिया, कुछ बढ़ जाएंगे, कुछ हो गया, उनको होप होता है क्योंकि एक सर्टन स्मॉल अमाउंट उनको मिले हैं तो उनको लगता है कि ये जेन्युइन है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने डे टू डे डाल रहे हैं कि हाँ आज हमें इतना इंक्रीज हुआ, इतना बेनिफिट हुआ। इस सब देख के ये इनका पूरा मोडस होता है, ये देख के ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे आपने फ्रॉड जीपीटी के बारे में बताया, इज देयर अ स्पेसिफिक और देयर आर लिस्ट ऑफ साइट्स व्हिच दिस फ्रॉडस्टर यूज फॉर वॉइस क्लोनिंग एंड फेस व्हाट यू कॉल दिस वीडियो डीप फेकिंग? यस, हाँ, voice.ai, there are many sites. See, it is for good purpose, it is for marketing purpose. बहुत अच्छे चीज़ों के लिए जो है उसी को आप नेगेटिवली कैसे यूज़ कर रहे हो वो चीज़ है ये। तो उसका आप मार्केटिंग पर्पस में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ऐसे ऐप्स के, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉडस्टर इसका मिसयूज़ करते हैं और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। Now let's talk about one of your most experiential case. I mean, you can name the case, whichever case that you would want to share with our audiences. Tell us, how do you approach those cases? What is the step that you take to, you know, understand कि ये actually कोई crime है या नहीं, cyber crime category में fall भी होता है कि नहीं, or just a real case which has happened to somebody in terms of losing a money or thing like that. I'm just giving a very raw example. Maybe you can put a right direction to this. साइबर क्राइम इज समथिंग कि नॉट नेसेसरी कि आपका कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तभी आपका स्कैम हो रहा है। जैसे कोविड में एक केस था जिसमें कि एक लेडी थी जिसका इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है।
सो उनका पब्लिक प्रोफाइल ही रखना है। तो उनको काफ़ी 1-2 बार हुआ था कि इम्पर्सनेट कर रहा है कोई, तो पता चला था। तो कोविड के टाइम पे उन्हें वापस पता चला कि उनका किसी ने फेक अकाउंट बनाया है फेसबुक का, और उनका इंस्टाग्राम के अकाउंट से फ़ोटोज़ लेके ये फेसबुक पे डालता था, और डालने के बाद ये डालता था कि लाइक शॉर्ट टाइम वीडियो कॉल। आजकल ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं, आप किसी भी अकाउंट में चले जाओगे, काफ़ी आप उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वो ऑप्शन देगा कि यू कैन कॉल, जैसे एस्कॉर्ट सर्विस वगैरह और ऐसे टाइप के। और तो कोविड में क्या था, लोग घर पे बैठे हैं, ऐसे सब चीज़ों में बहुत फंसते थे, और उस टाइम पे उस लेडी का फोटोज़ और डे टू डे जो भी वो इंस्टा पे डाल रही है वो फेसबुक पे अपलोड करके उसके पर्सनल फ़ोटोज़ या उसके फैमिली की फ़ोटोज़ डाल के वो अपडेट करता था वहाँ पे। और अपडेट करने के बाद उसने, वो लोग जो हैं उसको अप्रोच करते थे कि हाँ हमें वीडियो कॉल पे बात करना है तुमसे। सो वो अपना एक यूपीआई शेयर करता था कि इस यूपीआई पे सो एंड सो अमाउंट भेजो, उसके बाद मैं और जो यूपीआई पे पैसे भेज देता था उसके बाद उसको ब्लॉक। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी उसने। ऐसे भी केसेस हुए हैं क्या जहाँ पे लोग ने यूपीआई पे ही दिखाया सी दैट आई ऑलरेडी पेड यू मनी, बट एक्चुअली आपके बैंक में आए नहीं है, एंड दे शो द स्क्रीनशॉट देयर ऑफ देयर यूपीआई पेमेंट की 10,000, 20,000, 1 लाख रुपये ट्रांसफर, एंड देन दे विल स्टार्ट सी मेरे ICICI बैंक से गए हैं, आई नीड मनी, आई पेड एक्स्ट्रा, ट्रांसफर मी सम, ऐसा काइंड ऑफ बहुत, एंड काफ़ी, आई मीन दे डू इट सो क्विक कि वो एक्चुअली ओरिजिनल रियल दिखता है स्क्रीनशॉट। हाँ, एंड वंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वंस तो मुझे ही गूगल पे में मैसेज आया था दैट 10,000 हैज बीन ट्रांसफर, बट व्हेन आई वाज लुकिंग एट माय अकाउंट देयर वाज नो मनी व्हिच हैड कम इन। हाउ डज दैट हैपन? सो ये क्या करते हैं कि ये जो केस है इसमें ये होता है कि विक्टिम को फ़ोन आता है कि आपके फादर ने मुझे बोला था कि आपके नंबर पे पेमेंट डालने के लिए। सो वो बोलता है कि हाँ मुझे 10,000 रुपीज़ बोला है डालने के लिए, तो वो 10,000 की जगह 15,000 का मैसेज डालेगा। मैसेज कहाँ डालेगा? चैट। जैसे कि हमें जो मैसेज आता है कि अमाउंट रिसीव हुआ है, वैसे जो जीपे चैट ऑप्शन है वहाँ पे आपको वो मैसेज डालता है, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन, वो फॉर्मेट होता है, ठीक है, अमाउंट रिसीव। सो हम बहुत बार कुछ विक्टिम है जो बिजी हैं ऑफिस में, वो ऐसे टाइम पे तो वो ज़्यादा नोटिस नहीं करते, वो देखते हैं, हाँ। सो उनको वापस कॉल बैक आएगा कि मैंने कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा डाल दिया है, वो आप मुझे वापस भेज दो क्योंकि मुझसे गलती से चले गए। और ऐसे करके इवन वो स्क्रीनशॉट्स फेक जनरेट करते हैं ऐसे ऐप्स है जिसमें बहुत इजीली फेक स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हैं यूपीआई के, और ये मैसेज के थ्रू ये स्कैम होता है। मोस्टली यही होता है कि कॉल किया उन्होंने कि हाँ आपके पेरेंट्स ने बोला था या आपके XYZ नोन ने बोला था इस चीज़ के लिए और हमने डाल दिया। ये स्कैम तो बहुत ही बेसिक्स है। आई थिंक QR कोड स्कैम भी होता है कि उनके उसमें पता नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रैकर एंड दे आस्क यू कि ओके डोंट पे मी डायरेक्टली, स्कैन ऑन दिस QR कोड आई एम सेंडिंग एंड देन यू पे। वो क्या स्कैम है और वो कैसे होता है? इसमें ये होता है कि लाइक जब आप QR कोड स्कैन करोगे तो जो हम स्कैन करते हैं तो पे करने के लिए करते हैं। बेसिकली क्या होता है, वो एक सर्टेन अमाउंट उस QR में सेट होता है, सेट अमाउंट। हम जीपे यूपीआई में एक सेट अमाउंट करके ऑप्शन कर सकते हैं कि इफ़ मुझे आपसे पैसे चाहिए तो मैंने 5,000 रुपीज़ सेट किया, आपको भेज दिया, तो वो आप जैसे स्कैन करोगे आपको स्कैन करने का डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन आएगा पिन का कि यू हैव टू पुट पिन, और आफ्टर पिन आपने डाला वैसे ही वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से, ना कि रिसीव होगा। तो लोग काफ़ी इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि ये अमाउंट रिसीव नहीं होगा, ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इस यूपीआई रिक्वेस्ट स्कैम कर बोलते हैं इसे, यूपीआई रिक्वेस्ट स्कैम, जिसमें कि रिक्वेस्ट मनी, इवन इफ़ आपका मेरे पास नंबर है तो मैंने अपने फ़ोन से आपको रिक्वेस्ट कर दिया तो वो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ सर्टन अमाउंट। वैसे ही QR कोड में होता है कि आपने QR को स्कैन किया, ऑटोमेटिक वो एक पेज ऐप ओपन होगा, ऐप ओपन होने के बाद आपको कोड ऑप्शन आएगा, आपका पिन इंसर्ट करते ही जो भी अमाउंट उसने सेट किया वो डिडक्ट हो जाएगा। ऐसे ये QR कोड स्कैम होता है। So the only way to save yourself is more awareness and keep reading about what's happening. Latest trend क्या है क्राइम में, साइबर क्राइम में? सबसे बड़ा स्कैम कौन सा हुआ है आज तक? सबसे बड़ा इन साइबर स्कैम या लाइक ऐसे वर्ल्ड वाइड में या आप इंडिविजुअली मैंने जो देखा है उस हिसाब से आप सबसे बड़ा आपके हिसाब से कौन सा साइबर क्राइम स्कैम या फाइनेंशियल स्कैम हुआ है सो फार?
सबसे बड़ा ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जो बैंक्स के साथ हुए हैं। हम्म बैंक को ही टारगेट किया है क्योंकि लूपहोल बहुत सारी जगह है। बैंक्स के अंदर है, अंदर के एम्प्लॉयज हैं, हमारे डेटा, क्योंकि ये कैन यू डेटा नेम द स्कैम, कैन यू नेम द स्कैम? स्कैम्स आर वेरी डिफरेंट कि अभी मैं सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं बोल सकता। जैसे मैंने खुद एक केस पे काम किया था, बॉयज लॉकर रूम केस। तो बॉयज लॉकर में ये था कि कुछ ऐसे लाइक कॉलेज और स्कूल के बच्चे का ग्रुप बना के, उन्होंने अपने प्राइवेट ग्रुप बना के बॉडी शेमिंग करना जो उनकी पास्ट रिलेशन में थी, या कुछ उनके स्कूल्स के कॉलेज की लड़कियां उनके बारे में। तो इससे उनकी मेंटालिटी पता चलती थी कि ये क्या, इतने अच्छे स्कूल्स के बच्चे, इतने अच्छे, मतलब वो ऐसे नहीं कि किसी गवर्नमेंट या किसी लो लेवल के स्कूल्स के बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चे थे वो लोग, और उन्होंने ऐसे ग्रुप बना के रखा था। और फिर वो उनके स्क्रीन जो कम्युनिकेशन थे उसी ग्रुप के एक पर्सन ने लीक किया, और फिर वो सब जगह जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने वहाँ पे अपलोड किया, और फिर लोगों के सामने आया कि ये स्कूल्स के बच्चे हैं, ऐसी मेंटालिटी रखे, किसी के बारे में कुछ रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, किसी के फ़ोटोज़ जो उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ शेयर किए थे वो ग्रुप पे डाल रहे हैं। तो ये भी एक साइबर फ्रॉड में ही आता है, ये भी एक स्कैम में आता है। एक ऐसे स्कैम हुआ था जिसमें कि बैंक में से वो पर्सन 1 रुपीज़, जैसे कि उसने बैंक के सर्वर का एक्सेस कर लिया था, और हर एक जितने भी उसके कस्टमर से उसके अकाउंट से 1-1 रुपया ही उस अकाउंट से डिडक्ट होता था, जो कि हिडन चार्जेस आजकल होते हैं। हम इतना नोटिस नहीं करते कि कौन सा एटीएम के चार्ज जा रहा है, एक्सवाइजेड चार्ज जा रहा है, जो हिडन चार्जेस है, ऐसे सोच के पता नहीं चला। बट बाद में ये रिवील हुआ कि जब उन्होंने ऑडिटिंग की होगी या समझा होगा किसी तरीके से, किसी मिस्टेक की वजह से, तब अवेयर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे साइबर के फ्रॉड के केसेस हैं कि बहुत ही इम्पैक्ट किया जिसने, क्योंकि ये फाइनेंशियली बहुत इम्पैक्ट करता है आपके इकोनॉमिक पे भी। इवन जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो एक साइबर वॉरफेयर होता है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि ये वॉरफेयर क्या है क्या नहीं है। तो इंडियन साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं या इंडियन साइबर की जो टीम है, वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, जैसे इंडिया में पेटीएम है, जो फ़ोन पे है, या जितने भी एनपीसीआर रिलेटेड या नॉन बैंकिंग है या बैंकिंग सर्वर्स है, उसको टारगेट करना, उसको डाउन करने की कोशिश करना, क्योंकि वो सम सर्टेन टाइम के लिए भी डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है वो इकोनॉमिक पे। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है साइबर। There is something called as crypto cyber crime also, or there is a terminology to it? क्रिप्टो Yeah. क्रिप्टो फ्रॉड होता है, क्रिप्टो Crypto करेंसी fraud. स्क्रैम्स होते Okay. हैं जिसमें कि आपको स्कीम्स देते हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉइन जेडएक्स, कॉइन डीसीएक्स, एक्सवाईजेड, एक 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 कॉइन को वो लॉन्च करते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर आपने इसमें अभी इन्वेस्ट किया तो आगे जाके इसका बहुत अच्छा रिटर्न्स है। तो एक वो लोकल लेवल पे सेमिनार्स करते हैं। मैंने ही काफ़ी फिजिकली 1-2 केसेस पे काम किया है जिसमें कि एक एक्सवाईजेड कॉइन के नाम पे लोगों को वो सेमिनार करते थे, अपना हाई प्रोफाइल दिखाते थे कि हाँ ऐसा है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें ये होता है कि आपको ज्वाइन कराना है, जैसे कि आपने आपके थ्रू 10 लोग ज्वाइन किए तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। Right. इस Networking. नेटवर्किंग टाइप हो गया, नेटवर्क Right. मार्केटिंग जैसे होती थी हाँ. उस तरीके से। इस तरीके से ये जोड़ते थे 10 लोग को, और इनिशियल टाइम पे वो रिटर्न्स आते थे। जैसे आपने 20,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको मंथ टू मंथ में आपके 3-4 मंथ्स आ रहे हैं आपके रिटर्न्स 3,000 के हिसाब से। पर किसी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, उसमें देख लिया कि हाँ इन्होंने ऐसे पिक्चर दिखाते कि हाँ ये तो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वो फिजिकली भी आपके सामने आते हैं। वर्चुअली तो है ही, स्कैम हो ही रहा है, वर्चुअली तो ऐसे प्लेटफॉर्म दिखाते ही है ये लोग, बट फिजिकली भी काफ़ी ऐसे स्कैम्स है जो होते हैं। और एक जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमें पता चला था, टिप ऑफ मिला था कि ये ऐसी ऐसी जगह ये स्कैम का सेमिनार हो रहा है, और हम वहाँ पे थे बट किसी और पर्पस से थे केस के। पर फिर हमने वहाँ पे रेड किया, रेड करने के बाद जो भी डिवाइसेस थे वो सीज़ किए। सीज़ करने के बाद देखा कि किस कंपनी के नाम पे कर रहे हैं, इनका मेन किंग प्लेयर कौन है। तो मोस्टली इनके जितने भी किंग प्लेयर है ये क्रिप्टो वाले सब बाहर है, आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट करते हैं,
और यहाँ पे लोकल ऐसे वॉलंटियर्स बना के, क्योंकि ये भी अर्निंग कर रहे हैं। ये यंग बच्चे हैं, मतलब यंग एकदम, सबके पास 4 व्हीलर, सबके पास अपने अपने घर, So they're सब not lone wolves. They're working in like a big group together. बिग ग्रुप। बट ये पैसे रोलिंग, वही विक्टिम्स के ही पैसे रोलिंग करते हैं और फिर सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। What are the kind of protocols अगर follow हो? I don't know if this is the right question. Please let us know. Protocols that could have prevented this any scam specific revolving around AI today. See, it is very difficult to control AI because see, बात वही हो जाती है कि हम अच्छे कॉज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें वो मॉनिटर करना ओवरऑल, जब तक इसको प्रॉपरली इसके लिए कोई एक लॉ या एक पॉलिसी आ ना जाए गवर्नमेंट में, तब तक हम इस चीज़ पे कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि एआई ओपन सोर्स है, सब यूज़ कर रहे हैं अभी, काफ़ी किस अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ नई अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसका किसी पे कंट्रोल नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी पे भी किसी का कंट्रोल नहीं है। जो जैसे कि आप नॉर्मल बैंकिंग है, वहाँ पे आप जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो आ सकता है, बट क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है। इस पे सिर्फ अगर आप क्रिप्टो करेंसी के जो बिटकॉइन वगैरह हैं, जो कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो जेन्युइन कंपनीज़ हैं, बाइनेंस हो गए और कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट उसका भी इंडिया में ये है कि आप सर्टन अमाउंट आपको टैक्स जाएगा, सर्टन यू हैव टू पे सर्टन टैक्स उस बेनिफिट में से। बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं आया है कि इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट हो और वो उस पर्सन पे लगे। So शुभम, जो यंग जनरेशन है, स्पेशली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14, 15, 16, मैं वो वाले जनरेशन की बात कर रही हूँ, who have got a good access to phone these days. In fact, age group much earlier to them also have got. But let's talk about this generation, जहाँ पे अब उनके private phones हो गए हैं. They started to use all sort of social media also in certain ways and lot more other platforms. इस केसेस में ना काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं कि यू नो, बिकॉज बॉयज़ वॉज वन ऑफ सच केस ऑफ दैट एज ग्रुप, राइट? तो व्हाट कैन अ पेरेंट डू टू अंडरस्टैंड दैट? तब शायद आपके टाइम पे, आई मीन उस टाइम पे AI इतना नहीं था, बट अब तो AI का यूसेज हो गया था. हाउ कैन पेरेंट्स बी मोर अवेयर ऑफ इट टू हेल्प देयर चाइल्ड नॉट गेट इन टू सच ट्रैप? एट द सेम टाइम, व्हाट काइंड ऑफ एन एजुकेशन वी कैन गिव to this generation of kids so that they understand which direction they are going, is this right or not, when it comes to, you know, indulging in this kind of online activity? मोस्टली मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें कि माइनर बच्चे हैं और उन्होंने ट्रॉलिंग की है, इवन उन्होंने कुछ मीम्स बनाए हैं अपने टीचर्स के, अपने ही स्कूल्स के. तो मैंने ऐसे केसेस थे कुछ इंस्टीट्यूट के जिनके फेक अकाउंट बना के, जो ग्रजेस था कि हाँ टीचर ने किसी को चिल्ला दिया है, तो वो गुस्सा कैसे निकाले वो टीचर्स के उन्होंने मीम्स बना दिए, फेक अकाउंट बना दिए जहाँ पे अप टू डेट किसी के बारे में कुछ ना कुछ बातें करना, एक कन्फेशन टाइप एक ग्रुप बना देना. ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं और मैंने देखे हैं. तो पेरेंट्स को एक तो ये जो साइबर, एक तो पहली चीज़ है कि उनको इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं इससे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकता है. मतलब इससे जो इफ़ेक्ट हो सकता है ये एक साइबर क्राइम में आता है और ये उनके लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है. तो ये इवन कॉलेज स्कूल्स हो गए और जो पेरेंट्स हो गए, उनको वो ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने बच्चों के साथ कि जो आप ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो वो कहीं ना कहीं उसके भी एक डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, उसके एक मॉनिटर होते हैं चीज़ें. क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि ये मैं अकाउंट बना के कर लूँगा तो कुछ क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. तो ऐसे हमने ट्रेस करने के बाद पता चला है कि ये तो माइनर बच्चा है. अब पर माइनर है तो उसके लिए भी जुवेनाइल कस्टडी होती है, उसके लिए भी लॉ है. बट एट लास्ट कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ये तो गलत होगा क्योंकि वो अवेयर नहीं था उस चीज़ से, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि ये जो मिस्टेक कर रहा है वो एक क्राइम है, बट वो तो मज़े मस्ती में कर रहा है. तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि ये जो अवेयर रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है. पहली चीज़ वो. दूसरी,
कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हाँ हमारा बच्चा है हमारे पास, मतलब ऐसे कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता था कि हाँ ये कुछ गलत ग्रुप्स के साथ है, पर वो बच्ची रिवील नहीं कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं, उसका पासवर्ड नहीं बता रही है, वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखी है, कल को कोई गलत स्टेप ना ले। तो कुछ ऐसे चाइल्ड मॉनिटर ऐप्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आपका बच्चा लैपटॉप पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, प्लीज डू शेयर दैट आल्सो विद मोबाइल में क्या एक्टिविटी कर रहा है, सो वो मॉनिटर हो कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि एट लास्ट आप उसके पेरेंट्स हो। जब तक वो मैच्योर नहीं हो रहा है तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ गलत चीज़ में ना चले जाए। इसकी वजह से आप ये एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक बेसिक चीज़ एक डिजिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से फ्रॉम अ पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, two things which I could understand is one, an education that needs to happen in both school and colleges, इस तरीके से कि बच्चों को पता चले कि ये फ्रॉड में आता है और आप जो कर रहे हो उसके बहुत ही बुरे रिपरकशंस हो सकते हैं, जिसमें आपके करियर भी स्पॉइल हो सकती है। Secondly is there are lot many apps which can help us protect our kids from this kind of situation जहाँ पे डीप फेक पिक्चर्स, वॉइस क्लोनिंग हो रही है या उनको मिसलीड किया जा रहा है, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी कैन डू. I think you've said enough, but if I am a parent and I want to have a conversation with my child around this, both mentally and emotionally, around digital threat, what is the way or approach should be taken in consideration? आपको सबसे पहले तो फ्रेंडली रहना है अपने बच्चे के साथ, कि वो खुद ही आपसे सब चीज़ें शेयर करें। बिकॉज क्या होता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड, गेमिंग वर्ल्ड में जब वो जाते हैं कि जब पेरेंट्स की साइड से उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मोस्टली क्या होता है उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में उनके दोस्त बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए हैं जहाँ पे गेमिंग प्लेटफॉर्म, वो गेम में ही लगे हुए हैं, उनके चैट ग्रुप्स है जहाँ पे वो गेम में पबजी हो गया या मल्टीपल गेम्स है जहाँ पे वो बिजी रहेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा, तो वो एकदम ऑक्यूपाइड है उस चीज़ में। और बट पेरेंट्स अवेयर नहीं कि वो जिस ग्रुप के साथ है वो लोग की मेंटालिटी कैसी है, वो कैसे लोग हैं, क्या है। तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं बच्चे, तो आप उनसे हर जगह कनेक्ट रहो, क्योंकि आप उनके सोशल मीडिया पे हो तो उनको कहीं ना कहीं डर भी होना चाहिए और एक रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ ना कि जिससे मेरे पेरेंट्स को पता चले, और वो कहीं ना कहीं पता चलने के बाद उनको पता है कि देखो पेरेंट्स किस हिसाब से हैंडल करेगा वो तो उसके पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप उसके साथ अपने चीज़ें डिस्कस करो, अवेयर करो उससे कि आजकल ऐसे हो रहा है, मैंने इस तरीके से हो रहा है। ये सवाल इसलिए पूछा बिकॉज आई एम श्योर आप ऐसे केसेस आपने देखे हैं, बिकॉज वन केस तो आपने ही सॉल्व किया है, बॉयज़ ग्रुप वाला जो था। तो आपने देखा है कि इन केसेस में ये इस वजह से ही होता है बिकॉज पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कॉन्वर्सेशन इतना ओपन नहीं है। सी मोस्टली इसी वजह से होता है। दूसरा ये हो जाता है कि आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप के कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आप भी कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हो। क्योंकि जैसे मैं मीम्स वाली बात बता रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे गेमिंग ग्रुप में कनेक्ट होने के बाद कुछ नेगेटिव बोलना सीखना, आप मल्टीपल चीज़ें ऑनलाइन सीखते हो चीज़ों से। आपके पेरेंट्स कभी आपको कोई गलत चीज़ सिखाएंगे नहीं, बट आप जिस सराउंडिंग में हो, स्कूल कॉलेज में आप क्या कर रहे हो वो पेरेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, पर वर्चुअली पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक वो बच्चा मैच्योर ना हो। इसलिए कुछ ऐसे चाइल्ड मॉनिटर एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करके आपके बच्चे को बताओ मत कि मैंने ऐसे मॉनिटर किया है, बट एटलीस्ट आपको पता चल जाए तो आपको कैसे रोकना है वो आप अलग तरीके से एक सेकेंड स्टेप ले सकते हो उस चीज़ के लिए। सो कैन यू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपने देखा है अधिकतर यही रीज़न होता है कि पेरेंट और चाइल्ड में कॉन्वर्सेशन इतना ओपन नहीं है। सो कैन यू सिंप्लीफाई दिस होल थिंग कि हम कैसे एज अ पेरेंट वी हैंडल दिस होल सिचुएशन बिफोर इवन इफ इट्स हैपेंड? सी आपको बच्चों के साथ ये भी डिस्कस करना है कि एक साइबर हाइजीन क्या है। अगर आप उन्हें मोबाइल दे रहे हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो एक साइबर डेली जैसे हम एक हाइजीन रखते हैं वैसे साइबर हाइजीन रखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सोशल मीडिया पे हो, आप किससे किस लेवल तक कम्युनिकेशन करना है। आप सोशल मीडिया हो किसी न्यू फ्रेंड से मिलके आपको विदाउट इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स किसी को मिलना नहीं है। आपको कुछ एब्यूजिव, कोई ट्रॉल, कुछ मीम्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जितना उसमें कम एज के बच्चे ही ये सब एक्टिविटी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। जैसे उनकी कोई फ़ैन बन गया
कि XYZ एक्टर के या XYZ गेम के जो भी गेमर है उसके वो फ़ैन है, बट जो उसके ओपोनेंट है उसके बारे में वो नेगेटिव लिखना, तो ये मेंटालिटी नेगेटिव वाली यहाँ से शुरू होती है और फिर वो चीज़ें क्रिएट करते जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे फैंस देखे हैं मैंने जो किसी टीवी सेलेब या किसी सिंगर के हैं और वो फिर ट्रॉल पे ट्रॉल किए जा रहे हैं उसके ओपोनेंट को, और इस लेवल पे करते हैं कि वो हैरेस हो गया है। मतलब मैंने काफ़ी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि खुद वो जो सेलेब है वो परेशान होके मुझे अप्रोच किया, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये तो बच्चा निकल रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। ऐसे काफ़ी केसेस हुए। जैसे टीचर्स का मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट एकदम परेशान हो गए थे, ये कौन कर रहा है, अंदर बच्चों को, टीचर्स को हैरेस करना, उनके बारे में ट्रोल करना, मीम्स बना के डालना, ये सब चीज़ें। So you work very closely with Mumbai Police, right? हाँ, लाइक पास्ट कुछ लास्ट जैसे 6-7 इयर्स था, उसके बाद से मैं सबके साथ काम करने लगा। Okay. और फिर अभी इंडिपेंडेंटली जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ जो भी होता है इशू, तो फिर हम वो अप्रोच करते हैं। किसी का कोई फोटोमॉर्फिंग हो गया या कुछ हैक हो गया, कुछ भी रिलेटेड इशू, हैकिंग रिलेटेड इशू, कुछ फर्म्स है जिसके साथ मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, जो AI बेस्ड कंपनीज हैं जो डेवलप करती हैं टूल्स वगैरह, उनके साथ। So 3 things that I've understood from our conversation is awareness is a key to save yourself today. Second, having an expert with you who is like you, cyber expert. Third is a law which is needed for especially AI driven crimes that are happening. And fourth was education from the very early school level, because आज की तारीख में तो पेरेंट बच्चों को फ़ोन 3 साल की उम्र 2 साल की उम्र में ही दे रहे हैं, and there's so much which can happen through the screen. So a lot of education is needed coming from the starting, and every age needs a different type of education from schooling to college. So I think these are 4 things which I could make out of our conversation, apart from the fact that how you transitioned your journey from being a science student interested into animation and graphics to being a ethical hacker, where the time when nothing was prevalent about hacking and hacking was not even used as a good term. आज भी hacking अगर कोई सुने, on a forefront it is negative word only. Right? And how you transition, knowing your journey, your confidence, your clarity, your purpose behind doing it, and आपने 6 से 7 साल दिए अपने इस करियर को ग्रो करने के लिए, रैदर एडुकेट किया अपने लोगों को हेल्प किया, सपोर्ट किया. नाउ वेयर यू आर टुडे, पीपल कम टू यू फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री टू पुलिस अक्रॉस इंडिया टू क्रैक सम क्रिटिकल केसेस वेयर यू आर द एक्सपर्ट माइंड बिहाइंड इट. सो thank you, Shubham. I think this was a very good conversation, very knowledgeable and informative conversation. I think I've got it all from what I wanted from this day. But if you think there's anything still missing, do let us know. Thank you so much. Nothing, right? Thank you very much. Thanks for your time. Thanks for imparting so much of awareness and knowledge in this conversation. Thank you.